નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફર્સ્ટ ન્યૂઝ ઇવનિંગ બુલેટિનમાં હું ઉદય રાવલ આપનું સ્વાગત કરું છું। બુલેટિનની શરૂઆત કરીશું ઉમરગામના મુખ્ય સમાચારોથી। ઉમરગામ તાલુકાના સોરસુંબા રેલવે ઓવરબ્રિજના પશ્ચિમ તરફ સર્વિસ રોડની કામગીરી ચાલી રહી છે, જેમાં એજન્સીની બેદરકારીને કારણે નિર્દોષ વ્યક્તિનો ભોગ લેવાય એવી શક્યતા વર્તાઈ રહી છે। છેલ્લા 2 દિવસથી સર્વિસ રોડના નિર્માણની કામગીરી બંધ હાલતમાં જોવા મળી રહી છે। બેંક તથા પંચાયત કચેરીએ આવતા લોકોએ 200 મીટરથી વધુ અંતરે વાહનો પાર્ક કરવા પડે છે। સર્વિસ રોડના નિર્માણની કામગીરી દરમિયાન સ્થળ ઉપર ખોદકામ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં સુરક્ષા સંદર્ભે સદંતર બેદરકારી જોવા મળી રહી છે। રાત્રિના સમયે સ્ટ્રીટ લાઇટ સુવિધાના અભાવે અજાણ્યો વાહન ચાલક અકસ્માતનો ભોગ ન બને તે માટે એજન્સી દ્વારા સત્વરે સુરક્ષા સંદર્ભે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે તે જરૂરી બન્યું છે। ઉમરગામ તાલુકાના અચ્છારી ગામે ધારાસભ્ય રમણભાઈ પાટકરની અધ્યક્ષતામાં ધરતી આભા જનજાગૃતિ ગ્રામ ઉત્કર્ષ અભિયાન અંતર્ગત કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમમાં ઉમરગામ મામલતદાર દલપતભાઈ તથા અન્ય અધિકારીઓ અને મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ધારાસભ્ય રમણભાઈ પાટકરે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધનમાં આદિજાતિ વિભાગની વિવિધ યોજનાઓ વિશે ઉપસ્થિતોને વિસ્તૃત જાણકારી પૂરી પાડી હતી। રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આદિવાસી યુવાનોને શિક્ષણ અને રોજગાર ક્ષેત્રે અપાતી સહાય વિશે જાણકારી આપી હતી। રોટરી ક્લબ ઓફ સરીગામ દ્વારા રોટરી કમ્યુનિટી હોલ ખાતે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમમાં લાયન્સ પુરીબેન પોપટ લાખા બ્લડ બેંકના સેવાભાવી ડોક્ટરોએ નોંધપાત્ર સેવા આપી હતી। રોટરી પ્રેસિડેન્ટ રોટેરિયન જાનવી આરેકર, પ્રોજેક્ટ ચેરમેન રોટેરિયન જૈવિક પટેલ, કો ચેરમેન ભાવિન પટેલ, હોસ્પિટલ ટ્રસ્ટના ચેરમેન ડોક્ટર સુરેન્દ્રસિંહ પરમાર અને સરીગામ રોટરીના સભ્યોએ રક્તદાતાઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો। સમાજ ઉપયોગી કાર્યક્રમના આયોજન બદલ રોટરી ક્લબ ઓફ સરીગામને ઉદ્યોગકારો તથા ઉપસ્થિત સેવાભાવી સભ્યોએ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। રક્તદાન શિબિરમાં યુવા રક્તદાતાઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લઈ રક્તદાન કર્યું હતું। દમણ ખાતે સેલ્યુટ તિરંગાની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં કાશ્મીર થાઈલેન્ડમાં યોજાનારી તિરંગા યાત્રા અને અન્ય મહત્વના કાર્યક્રમો અંગે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે પદાધિકારીઓને जानकारी આપી હતી। आप सभी को नमस्कार। आज सैल्यूट तिरंगा का एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग दमन में हम लोग कर रहे हैं। हमारे सारे मुख्य लोग हमारे बीच में आप देख पा रहे हैं। उत्तम भाई हमारे साथ में हैं, राजेश जी हैं। हम लोगों का आज का मीटिंग का जो विषय था वो था कि हम लोग कार्यक्रम को बताएं अपने लोगों को, जो हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं उनको हम लोगों ने यहाँ का कार्यक्रम शेयर किया है। हमारा आने वाला कार्यक्रम कश्मीर की तिरंगा यात्रा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हम लोग गंभीरता से लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि आप पिछले साल की माहौल थोड़ा देखे थे। दूसरा कार्यक्रम हमारा है विदेश यात्रा। अभी हम अटल तिरंगा ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड स्टार्ट कर रहे हैं थाईलैंड से। हर साल अब हमारी अटल तिरंगा का 2 प्रोग्राम होगा, एक होगा देश में, एक होगा विदेश में। तीसरा कार्यक्रम है हमारा गंगा आरती का, जो 17 सितंबर को होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हम लोग एक तिरंगा यात्रा करते हैं, दिल्ली से लेके हरिद्वार ऋषिकेश तक वहां आरती करते हैं। और उस आरती को हम लोग राष्ट्रवादी आरती नाम दिए हुए हैं, जिसमें हम राष्ट्रवाद और वहां के जो आरती है दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं। चौथा हमारा है अटल तिरंगा सम्मान, जो दिल्ली में होता है। और 5वां ये है कि हमने अभी संगठन के सभी मुख्य लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमने ये बात किया है कि संगठन का विस्तार करिए, संगठन में लोगों को जोड़िए, राष्ट्र भावना जगाइए और सभी के बीच में कैसे राष्ट्र भावना ज़्यादा से ज़्यादा जगे और आने वाली जो नई पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं जो कॉलेज स्कूल जाते हैं, उनके बीच तक कैसे पहुंचा जाए, स्कूल में कैसे सेशन हो, कैसे सेल्फ डिफेंस के ऊपर काम करें, ताकि हमारा जो नई पीढ़ी है वो राष्ट्रवाद के लिए प्रखर होकर उदय हो उसका, और भारत का स्वर्णिम इतिहास बनाने के लिए वो तैयारी करे। डिजिटल धरपकड़नी धमकी आपीने करोड़ोनी छेतरपिंडी करनारी गैंगना 7 सभ्योने दमण पोलीसे झड़पी पाड्या हता। देशना विविध राज्योमांथी 7 जेटला आरोपीओने दमण पोलीसे झड़पी पाड्या छे। दमण पोलीसे आवा कॉलथी लोकोने सावधान रहेवा अपील करी हती, साथे ज अजाण्या कॉल के नोटिस आवे तो तात्कालिक पोलीसनो संपर्क करवा जणाव्युं हतुं। ये नवंबर 2024 का इंसिडेंट है, जब कंप्लेनेंट जो विक्टिम है राकेश चरसिया, उनकी तरफ से एक कंप्लेंट आई हमारे पास, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको एक फ़ोन नंबर से कॉल आया, जिसमें उनको बताया गया कि जो विक्टिम है उनका जो फ़ोन नंबर आधार नंबर से उनका लिंक्ड है वो किसी FIR में वांटेड है। तो इस बिना पे उनको डराया गया और उनको बताया गया कि उनको 3 महीने की
जेल हो सकती है। उसके बाद वेरिफिकेशन करी जाएगी, या फिर उनके पास दूसरी ऑप्शन है कि वो 24 घंटे में ऑनलाइन अपना वेरिफिकेशन करवा लें। तो इस डर के मारे उन्होंने जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराने वाला जो माध्यम है उसको चुना, और उसके बाद उन्होंने उस डर से उनसे जो भी उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो सारी उनसे निकलवा ली, और उनको पता चला कि उनके खाते में जो अच्छी खासी रकम है। उसके बाद उनको बोला गया कि आरबीआई के खाते में आपको ये पूरी अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और अब कुछ अगर सब कुछ वेरिफिकेशन में ठीक निकला तो वो उनकी अमाउंट वापस कर दी जाएगी। तो वो उस डर में उनसे ये उन्होंने 27 लाख 2 अलग अलग आरबीआई के नाम पे उन्होंने ट्रांसफर करवा ली, एक खाते में 20 लाख और एक खाते में 7 लाख। तो इस मामले में दिसंबर 2024 में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो उसके बाद से हम लगातार इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसमें अभी हमें सक्सेस मिला है। अलग अलग हमारी पुलिस टीम्स ने अलग अलग राज्यों में रेड करी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो अभी तक इसमें कुल 7 आरोपी हम पकड़ पाए हैं, जिनकी पूछताछ से हमें पता चला कि ये लोग जो आम लोग हैं उनको पैसे का लालच देके कि आपके खाते में से जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका आपको 1% 2% कमीशन के नाम पे ये आम लोगों के खाते ले लेते हैं, और उन खातों में से फिर जो चीटेड मनी है उनको घुमाया जाता है, जिसको हम मनी लॉन्ड्रिंग भी बोल सकते हैं। अगर वो एक ही खाते में से पूरा पैसा करेंगे तो उनको पकड़ना काफी इजी हो जाएगा, बट वो काफी 50, 60, 100 खातों में से पूरी उस मनी, चीटेड मनी का राउट करते हैं और इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देते हैं। तो इसमें टोटल हमने 7 आरोपी अभी तक पकड़े हैं। जो भी ये हाँ जी, ये वाला ये पहला मामला दर्ज हुआ था, और मैं इसमें आपके माध्यम से मेनली लोगों को भी अवेयर करना चाहूंगा कि लोग इस जो भी साइबर अपराध होता है वो कहीं ना कहीं 2 फैक्टर्स को लेके होता है, डर या लालच। तो ये दोनों आजकल चल रहे हैं। एक डिजिटल अरेस्ट वाला चल रहा है जिसमें वो डर के बजाय आपसे पैसे ले रहे हैं, एक दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड काफी चल रहा है जिसमें वो आपको लालच देके आपसे पैसे निकलवा रहे हैं कि आपको इतनी रिटर्न मिलेगी। तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई पुलिस कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी काफी इस चीज में अवेयरनेस भी चल रहा है पूरे इंडिया में, और देखा गया कि अभी ये कम भी हो रहा है। तो एक तो लोग किसी भी ऐसे डर में आके किसी ऐसे उसका शिकार ना बने ऐसे क्राइम का। और दूसरा मैं जो आपको बताया कि इसमें जो ये क्राइम कर पाते हैं, लोगों के अकाउंट होने की क्राइम कर पाते हैं। अगर मैं अपना अकाउंट किसी को बिल्कुल ना दूं तो ये क्राइम नहीं हो सकता। तो ये जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, काफी हमें फोन पे मैसेज आते हैं जॉब ऑफर्स के कि घर बैठे पैसे कमाएं। तो वो जो होता है उसमें यही रहता है, वो आपका अकाउंट लेते हैं, आपको कुछ थोड़े बहुत 1000-2000 आपको पैसे दे देते हैं। तो अगर आप अपना अकाउंट किसी ऐसी आपकी एक्टिविटी में यूज हुआ तो ये भी पनिशेबल ऑफेंस है, और उसमें फिर आप लोगों की भी जो है कानून आपके अगेंस्ट भी, उसमें जो भी कार्रवाई है वो आपके अगेंस्ट होती है। तो अपना अकाउंट किसी को मत यूज करने के लिए दिया जाए। फास्ट न्यूज इवनिंग बुलेटिन में आज बस आटलू ज। आवतीकाले फरी मळीशुं। नमस्कार।